آج لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو رہا کر دیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رانا ثناء اللہ اتنے عرصہ قید میں کیسے رہے؟ پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ یہ چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کسی تیسری طاقت کی طرف کہ ان لوگوں کے درمیان میں کوئی تیسرا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی چیز انڈر دا ٹیبل ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہی کام کرتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر وہ اندر تھے تو کس کیس میں تھے، اور اگر وہ باہر ہیں تو کس کنڈیشن میں باہر ہیں، یہ پبلک ہونی چاہیے چیز۔ سسٹم کو ایسا چلنا چاہیے کہ ایک عام آدمی جو اس پہ ٹرسٹ کرے۔ اگر جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے دیکھیں یہ بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، جیلوں میں دیا جاتا ہے، گرمیوں میں اے سی لگائے جاتے ہیں، ان کو پورے کھانے دیے جاتے ہیں، غریب کو یہ جیل میں کوئی سہولتیں ہیں؟ اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے نا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے سب قانون ہے، اس پہ سارے قانون لاگو ہوں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سب کا باپ ہے۔ اگر یہ دیکھیں یہ ایک کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو پکڑتے ہیں، تیسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سابقہ سیاستدان گزرے ہیں، یہ ہماری جو فوج ہے یہ بارڈروں پہ جا کے جانے قربان کر کے پاکستان کو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی سابقہ سیاستدان انہوں نے پاکستان کو ایک دکان سمجھا ہوا ہے۔ میں یہ عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ جس کے پاس آپ پکڑتے ہیں اس کا احتساب کرتے ہیں تو اس کا احتساب پورا کریں۔ اگر آپ نے افواہیں پھیلائی ہیں جی قومی خزانہ ختم ہو گیا ہے، قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو اگر یہ دیکھیں غریب عوام جو ہے جو امیدیں لگا کے بیٹھی تھی پی ٹی آئی سے، جی پی ٹی آئی آئے گی، تبدیلی لے کے آئے گی، مہنگائی کم ہوگی۔ سر فیصلہ تو یہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عام انسان کے پاس اگر 1 گرام کوئی منشیات برآمد ہو جائے تو اس کے لیے وہ بقایا پاس سے ڈال دیتے ہیں، 1 گرام ثابت ہو تو وہ 1 کلو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے پاس تو 10 کلو برآمد ہوئی تھی، 15 کلو، اور وہ باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ نہیں تو منشیات کا کیس تھا کہ 15 کلو چرس تقریباً برآمد ہوئی ہے، ہیروئن جو بھی برآمد ہوئی ہے منشیات، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اگر وہ یہ برآمد، انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی رہا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات وہی میں کر رہا ہوں نا، اب ڈرگس تو میڈیکل سٹور کے بعد بھی ڈرگس لکھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مائی بھی ان کو غلط فہمی ہوگی ہو، ان کے پاس جو انفارمیشن ہو وہ دوسری ڈرگس ہو 15 کلو۔ سو بات صرف اتنی ہے کہ اگر قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، اور یہ بڑا سیریس کیس تھا، نارکو ٹیکس، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ضمانت ہوتی نہیں۔ 15 کلو ڈرگز اگر آپ کے پاس ہے تو بڑے نچلے درجے کی بھی اگر ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ایف آئی ڈین میں دیکھنے کو جو حنیف عباسی صاحب بھی باہر ہیں، وہ بھی اندر ہیں، ضمانت بھی باہر آئے ہیں، لیکن سسٹم کو ایسا چلنا چاہیے کہ ایک عام آدمی جو اس پہ ٹرسٹ کرے۔ سر اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج جب انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا تھا، 15 کلو ہیروئن انہوں نے میڈیا پہ اتنی افواہیں پھیلائی تھیں، جی رانا ثناء اللہ صاحب پکڑے گئے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 15 کلو چرس جو ہے وہ کیا ہیروئن ہے یا چرس ہے، جو کچھ بھی ہے منشیات ہے، یہ کوئی تھوڑی ہیروئن نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ثبوت دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، تو ان کو سزا جو ہے یہ پاکستان قانون کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دیکھیں یہ ایک کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو پکڑتے ہیں، تیسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سابقہ سیاستدان گزرے ہیں، یہ ہماری جو فوج ہے یہ بارڈروں پہ جا کے جانے قربان کر کے پاکستان کو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی سابقہ سیاستدان انہوں نے پاکستان کو ایک دکان سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیسے کھاتا ہے باہر نکل جاتا ہے، دوسرا پیسے کھاتا ہے کرپشن کرتا ہے باہر نکل جاتا ہے، تیسرے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے کھا کے پھر باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ جس کے پاس آپ پکڑتے ہیں اس کا احتساب کرتے ہیں تو اس کا احتساب پورا کریں۔ اگر آپ نے افواہیں پھیلائی ہیں جی قومی خزانہ ختم ہو گیا ہے، قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو اگر یہ دیکھیں غریب عوام جو ہے جو امیدیں لگا کے بیٹھی تھی پی ٹی آئی سے، جی پی ٹی آئی آئے گی، تبدیلی لے کے آئے گی، مہنگائی کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج بھی مجھے بتائیں کہ جب بھی پریشان ہے، غریب آدمی پریشان ہے، کاروباری حضرات پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیے عوام نے پی ٹی آئی کو یا نون لیگ والوں کو کہ یار یہ لوگوں کا احتساب کریں، انہوں نے ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کبھی دھرنے دے رہے ہیں، ان کے پلان عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، جی اے پلان ہے، بی پلان ہے، سی پلان ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں
6 माह से या 3 माह का धरना दिया गया है, लोग परेशान हुए हैं, रोड ब्लॉक किए गए हैं। इस धरने में आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? हुकूमत जो भी धरने पे आती है, ठीक है, उनको पैसे देती है, सियासत में लेके आती है, फिर उनको साइड पे ले जाती है, ठीक है। अब ये देखें, राना सनाउल्लाह के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा वो केस डाल दिया जी, 15 किलो हीरोइन। आप मुझे केस डाल दिया तो कि आपको क्या लगता है राणा साहब इसमें मुलव्वस नहीं थे? नहीं सर, अगर मुलव्वस हैं तो फिर इनको देखें कि इनको कानून के मुताबिक इनको सज़ा भी तो देनी चाहिए। देखें, अगर आप मेरे ऊपर अगर फर्ज करें केस बनता है हीरोइन का, या आपके ऊपर बनता है, तो क्या इसकी सज़ा 6 माह की है कानून के मुताबिक, ठीक है। अगर इन्होंने पूरी आवाम को, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ये खबर फैलाई है जी 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है, ठीक है, तो इसकी सज़ा मुझे बताएं कि उम्र कैद की सज़ा है या 6 माह की सज़ा है, ठीक है। क्या ये कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए ही है? ये सियासतदान जो है ये 3 माह रहते हैं, 6 माह रहते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये जितनी भी महंगाई हो रही है, ठीक है, इसमें मुझे बताएं कि आवाम का क्या कसूर है? अवाम का कसूर ये है कि ये इन लोगों को वोट देते हैं, इनको वजारतें मिलती हैं, जब ये वजारत में आते हैं तो फिर गरीब बंदे के सर पे ना ये हाथ रखते हैं, ना उसकी बात सुनते हैं। आज भी गरीब बंदे के लिए कोई थाने में मसला बन जाए तो वो बेचारा जो है परेशान होता है, ठीक है। इन्होंने कहा जी हम थाने के जो हैं वो सिलसिले जो हैं सही करेंगे, ये असूल कानून सही करेंगे, तब्दीली लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गरीब बंदे को इस हुकूमत से क्या मिल रहा है? ठीक है, गरीब पिस रहा है। जी जी, जब भी देखें कानून जो है, इनको अगर जेलों में भी चले जाते हैं तो ये यही समझते हैं अमीर के लिए कानून है, गरीब के लिए कानून नहीं। जी, ये देखें, ये अगर जेलों में जाते हैं तो इनके लिए देखें ये भी यही महसूस करते हैं कि हम घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि ये जो प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है, जेलों में दिया जाता है, गर्मियों में एसी लगाए जाते हैं, इनको पूरे खाने दिए जाते हैं, गरीब को ये जेल में कोई सहूलतें हैं? आप जैसा या मेरे जैसा बंदा जो जेल में जाता है, मुझे बताएं कि वो परेशान नहीं होगा बेचारा? क्या होगा? आप मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, एक बंदा कमाने वाला है, उसके पीछे 6 बच्चे खाने वाले हैं, ठीक है। कभी इन्होंने गरीबों के हालात पूछे हैं कि यार एक बंदा किराए पे रह रहा है, या एक बंदे के पीछे देखें एक बंदा महीने का 20,000 कमा रहा है, उसके अखराजात 60,000 पे हैं, ठीक है। तो वो मुझे बताएं, खुदकशी नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो गलत बात है ना जी। आगे राना सनाउल्लाह साहब को भी इन्होंने गिरफ्तार किया है, तो इमरान खान साहब कहते थे जी मैं सारों को अंदर करूँगा, सारों से ये करूँगा, बदले लूँगा, पैसे निकलवाऊँगा। सारे आस्ता आस्ता जो उनसे जा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं दे के जा रहा। बिल्कुल, मियाँ साहब भी चले गए, खुर्शीद साहब भी चले गए, आसिफ जरदारी साहब भी चले बात गए। वही आ जाती है यू टर्न जो उनसे दोबारा यू टर्न वाली बात है कि जो नहीं, ये रहा इमरान खान तो नहीं कर रहे, वैसे अदालत कर रही है। अदालत का रही है। फिर तो भाईजान ये जो अदालत वाले भी बैठे हैं, ये तो सारे जो उनसे फिर उन्हीं के पिट्ठू ही हैं सारे, जो पहले जो थे उन्हीं के पिट्ठू हैं, जो उनको जो उनसे रिहा करें या उनके साथ दे रहे हैं। ये क़यामत वाले दिन इस चीज़ का जवाब देंगे। अगर वो गलत रिहा उन्होंने किया तो ये इस चीज़ का जवाब देंगे क़यामत वाले दिन। राना साहब पे 15 किलो मंशियात का केस था। एक तरफ देखें मुशर्रफ साहब का आता फैसला कि उनकी लाश को घसीट के लेके जाएं, 3 दिन लटकाएं, दूसरी तरफ ये जितने सियासतदान हैं इनको रिहा कर दिया गया। गलत बात है ना जी। रिहा क्यों कर दिया है? इनके पास अगर सबूत था या ये था तो इनको चाहिए ना कि उनको सज़ा दें, जो उनसे ना हमारे मुल्क को पता चले वाकई यार कोई तब्दीली आई है, जो उनसे ना वाकई जिसने जुर्म किया उसको जो उनसे ना उन्होंने इसके बारे में उसके ख़िलाफ़ पर्चा दिया है या उसको अंदर किया या उसको सज़ा दी है। क्या कानून जो उनसे ना सिर्फ गरीब आदमी के लिए बना हुआ है? गरीब आदमी को कभी जो उनसे ना वो दस्ती सजाए मौत हो जाती है, दस्ती उसके लिए खिलाफ पर्चा हो जाता है, दस्ती ये हो जाता है। अमीर आदमी के लिए जो उनसे ना वो फैसला भी उनके लिए फ़ौरन हो जाता है। कोई गरीब आदमी का केस हो 8-8 साल 10-10 साल लग जाते हैं कचहरियों में। बिल्कुल, तो ये तो गलत बात है ना। अगर कोई मंशियात का केस है तो इसमें तो ज़मानत वगैरह होनी नहीं चाहिए उनके हिसाब से। 15 किलो मंशियात, 15 किलो बड़ी मंशियात है जी, बड़ी मंशियात है। अल्लाह माफ़ करे। हनीफ बासी साहब थे, वो भी रिहा हो गए, ये भी रिहा हो गए, नवाज शरीफ भी यहाँ से चले गए। अब कौन? मुशर्रफ को इन्होंने सज़ाए मौत दी है। मुशर्रफ यहाँ पे है ही नहीं है कि क्या सज़ाए मौत है। या तो यहाँ होते ना तो फिर पता चलता है यार उसको सज़ाए मौत दी है इन्होंने। अब बाहर के मुल्क बैठा वो आएगा? कभी भी नहीं आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेगुनाही देखी होगी, इसी वजह से रहा किया होगा। ये तो हमारे जज साहिबान उन्होंने बेहतर ही फैसला किया होगा जो किया होगा। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट इससे पहले जो भी फैसले लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, मियाँ साहब का गया, मियाँ साहब भी रहा होगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मियाँ साहब की जो मुद्दत उन्होंने दी थी 4 हफ्ते, वो आज
पूरी हो गई है, तो मियाँ साहब क्यों नहीं वापस आ गए? मियाँ साहब अब बहुत मुश्किल ही है कि वापस आएंगे। ये अगर वो इस सूरत हाल में ही वापस आएंगे, अगर ये हुकूमत गिर जाती है फिर उनके वापस आने का चांस है। अगर ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती है तो वो इन 5 सालों में वापस नहीं आएंगे। ठीक, बीमार ही रहेंगे। हाँ, बीमार ही रहेंगे। वो बीमार तो सिर्फ एयरपोर्ट की हद तक की थे, एयरपोर्ट पे वो स्ट्रेचर पे गए हैं, जहाज़ में बैठ गए हैं, वो सिर्फ ड्रामे ही था। ठीक है, नहीं तो राणा साहब का क्या है कि 15 किलो उन्होंने कहा था इससे मनशियात बरामद हुई आइस है। बरामद हुई। हाँ, 15 किलो। तो 15 किलो अगर एक आम आदमी से आधा किलो हो जाए तो उसका क्या असर होता है? हाँ, 9C है, सीधी सीधी सज़ाए मौत है। तो लेकिन इस मुल्क में जिसके पास पैसा है ना, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सब कानून है, उस पर सारे कानून लागू होंगे। जिसके पास पैसा है उसका कोई पूछने वाला नहीं है, वो सबका बाप है। ये भी उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, राणे को अरेस्ट ही नहीं कर सकते, अंदर रख ही नहीं सकते। कोई ऐसा काम वो कर ही नहीं सकते कि राणा साहब मजीद उस जेल में रहे। अच्छा फैसला किया को रिहा कर दिया उन्होंने, और आस्ता आस्ता मजीद भी लीडर बाहर आएंगे। क्यों? यार जब एक सियासी लीडर आपका रिहा हो रहा है तो मुल्क के लिए कोई काम करेगा ना, बेहतरी की सोच रख के मेरा ख्याल है किस अदालत केस में गिरफ्तार है राणा साहब? मेरा ख्याल है कुछ ड्रग्स वगैरह या इस तरह के मामलात में मुल्क के गिरफ्तार। लिए अच्छे काम करेंगे ना। लेकिन वो ड्रग्स में मुलजम तो नहीं बरकरार हुए ना यार, या हो गए मुलजम हो गए। मुझे यह बात आपसे भी पता चलनी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो रहा हुआ है, अभी तो रहा किस बिना पे हुए हैं? नहीं, पहले तो डिक्लेयर हो गए थे या नहीं? नहीं, पहले तो ये बात की गई थी कि 15 किलो मंशियात बरामद हुई है, ठोस सबूत हैं, अच्छा, तो अब रहा हो रहे हैं। तो वही बात है, 15 किलो ठोस पे है, तो अगर कुछ उसके मामलात या डील या कोई तफसीलात क्लियर हुए हैं तो तभी पता चला है ना। रिहा तो ऐसे नहीं हो सकता ना। मतलब कि उन्होंने ये मंशियात का काम नहीं किया। यार यकीनन नहीं किया होगा, लेकिन चलो जो उनके नीयत है उसको हम जाहिर तो नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे कोई इज्तिमाई बात। आज लाहौर हाई कोर्ट ने राणा सनाउल्लाह साहब को रहा कर दिया, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर जी, ये अदालतों का काम है। बात ये है कि कुछ प्रूफ नहीं हुआ तो इसी वजह से मतलब उनको रहा किया गया है। ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बकाया ये है कि अदालतें मेरिट पे फैसला कर रही हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े फैसले भी आए हैं। ये रिसेंटली अभी मुशर्रफ साहब का भी फैसला आया है, नवाज शरीफ साहब का भी आया है। अभी ये कोई अनहोनी बात नहीं है जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक नहीं, राणा साहब मंशियात के केस में गिरफ्तार हुए थे कि इनसे 15 किलो मंशियात बरामद हुई है। सर जी, अगर हुई है तो वो बता देना कहाँ हुई है। बात ये अगर बरामदगी हुई है तो कुछ बता दे। शहरयार अफरीदी साहब तो कह रहे थे हमारे पास वीडियो है, कम से कम कौम को वो वीडियो ही दिखा दे। सर, फैसला तो ये गलत हुआ है। ठीक है, एक आम इंसान के पास अगर 1 ग्राम कोई मंशियात बरामद हो जाए तो उसके लिए वो बकाया 5 से डाल देते हैं। 1 ग्राम साबित हो तो वो 1 किलो डाल देते हैं। उसके पास तो 10 किलो बरामद हुई थी, 15 किलो, और वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये बस ये जो कानून है हमारा, सिर्फ गरीबों के लिए है। अमीरों के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, गरीबों के लिए कानून है। गरीब कुछ भी करे तो वो सीधा अंदर। और ये बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे जो हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, सब, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, सब सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। ये सिर्फ हुकूमत में आते हैं मुल्क को खाने के लिए। इमरान खान है, इमरान खान को मैंने वोट दिया था। ठीक है, इमरान साहब कहते थे मैं ये पुलिस का निज़ाम ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, पेट्रोल इतने रुपये आ जाएगा। और ये नून लीग से भी ज़्यादा अब इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई हो चुकी है। ठीक, तो बस बकाया हालात आपके। तो क्या इमरान खान से क्या अभी उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब खुद तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम है ना, टीम उनकी ज़ीरो है। वही काफ लीग के दौर की सारी टीम है, इन्होंने वो सारे वो इकट्ठे किए हुए हैं। इमरान खान साहब खुद तो बहुत अच्छा सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो टीम है वो उनका साथ नहीं दे रही है।